Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Admit all. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Jatin, finally in this time. Students still joining in. Anvi late, Chinmay late. Okay, I'm locking the meeting now. Meeting locked. Mute all. Now I'll unmute a few. Amit, good afternoon. Good afternoon, sir. Some music playing in your background. Switch it Sorry, off. sir. Anvi unmuted. Good afternoon, Anvi. No response. So again, mute. Good afternoon, Ansh. Good afternoon, sir. I'll keep you unmuted. Okay, sir. Aradhya, good afternoon. Good afternoon, sir. I'll keeping you unmute. Aryan, good afternoon. Aryan Dua. No response. Again mute. Chinmay, good afternoon. Good afternoon, sir. I'm keeping you on unmute. Keeping your mic on. Okay, sir. Good afternoon, Tanya Jain. Good afternoon, sir. I've kept your mic on. Okay, sir. Okay, shall we start now? Yes, sir. Yes. थोड़ी disturbance आ रही है. Please keep your hands away from your devices.
and make sure जिनको मैंने mic on रखा है, there should be no disturbance in your room. Right? Okay, so Yes, in sir. last class we discussed the meaning of business environment. I'm expecting response from all those whose mic is on. Yes, sir. Yes, sir. So what does business environment mean? Business environment refers to the surroundings of the business. It includes legal environment, political environment, economic environment, and technological environment. Yes, very good, Tanya. The definition is all individuals, institutions, and factors that affect business. Right? So that is business Yes, sir. environment. We discussed its dimension, its features. Can you list out the points of features? First point was? Dynamic, Yes. Next? specific and general forces, Right. Next? uncertain, Then? interrelated, Yes. complex, What else? mm, Okay. Dimensions of general environment. There are 5 main dimensions, which are first one is political environment, yes. Second is economic environment, right. legal environment, technological and social environment. Right. We had discussed political environment. Political environment involves first point political stability. Second, Government's intervention. government's intervention. Third, why am I getting response only from Tanya? Other 3 people are also unmuted. Sir, actually, I couldn't attend the previous class, sir. You are Ansh. Ansh. So Ansh, you should have Yes, noted sir. down from someone what all was discussed. Anyways. Sorry, sir. Okay, what about you, Tanya and Ansh? Who else is unmuted? Chinmay. Chinmay. Chinmay, no response from you. What happened? Is Chinmay still here? Yes, sir. तो जवाब दो बेटा. Were you there in the previous class? Yes, sir. हाँ तो बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में? ध्यान है नहीं? नहीं. Very good. Okay, next is legal environment. Legal environment में first point is Various laws. Various laws. various laws. वो तो दिख रहा है ना? Second is Government regulations. Government regulation. third is Court Court decisions. decision. fourth is Fourth is not available, sir. on the screen, है ना? Yes, sir. So there's no fourth point. Very good, Tanya. 3 ही points discuss किए थे इसमें. Now we come to the next dimension. So we continue from here. Up to legal environment we had discussed in the previous class. Now social environment. Social environment, as the name suggests, relates with society, with people, right? It includes traditions, cultural values, education system, social trends, life expectancy, working women, etc.
Now we'll discuss these components one by one in detail. Beginning with traditions. What are traditions? Can anyone tell me? What do we mean by the word traditions? The customs. Sir, it includes the festival celebrated by the people all over the globe, world. Okay. Tradition means something which has been continuing since long. जो पहले से चला आ रहा है उसे हम क्या देते हैं ट्रेडिशन. ठीक है, तो ट्रेडिशन में हमारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं. ठीक है, दे आर एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशन. ड्रेसेस आ जाती हैं, हर रीजन की कुछ पर्टिकुलर ड्रेसेस हो सकती हैं उस रीजन के लोगों की जो वो पहनते आ रहे हैं काफी सालों से, वो उनका ट्रेडिशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट फॉर एग्जाम्पल इन सिख कम्युनिटी वियरिंग अ टर्बन इज अ ट्रेडिशन. Yes, Right. sir. देन Yes, sir. आपने सऊदी अरब के शेख देखे होंगे, वो जिस तरह से अपनी ड्रेस होती है उनकी और कवर करते हैं अपने सिर को. ठीक है, विद अ रिंग अराउंड. Yes, So sir. that is their traditional dressing. Similarly, when we talk of festivals like Deepavali, Holi, Guru Parv, etc., do you think these traditions have any impact on business? Yes, sir. How? Sir, when there is Deepavali, there is sale of diyas, crackers, and Yes, sweets all around India. More very good. So demand for and certain goods increases. Sweets, increases. diyas, candles, right? Gift items, इनकी डिमांड बढ़ जाती है. और जनरली दीपावली इज सच अ फेस्टिवल इन इंडिया कि इस पे सभी प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट डिमांड बढ़ जाती है. लोग इस टाइम पे मोस्टली चीजें खरीदना प्रेफर करते हैं, ऑस्पिशियस माना जाता है उस ड्यूरेशन में कोई भी चीज खरीदना. So many people buy many things during that time. So demand for almost all products are high, especially of sweets, gift items, diyas, candles, right? So it directly affects business of these all products. दीपावली पे अगर आपने नोटिस किया हो, इंडिया में मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं दीपावली सीजन में. Yes, sir. अधिकतर प्रोडक्ट्स पे. सो जनरली ये भी कहा जाता है इफ यू वांट टू बाय एनी कॉस्टली आइटम एंड इफ देयर इज नो अर्जेंसी देन वेट फॉर दीपावली, you will get the best deals, you'll get maximum discounts at that time, maximum schemes at that time, right? So why? Because every producer knows कि दीपावली के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग चीजें खरीदते हैं. So every producer wants कि ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हमारे पास आए इंक्रीज डिमांड का. उसके लिए वो डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, स्कीम्स निकालते हैं. So in this way traditions directly impact business. Clear? Yes, sir. Then next point is cultural values. What do we mean by these cultural values? हर कल्चर की, हर कम्युनिटी की कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं. Yes. For example, in India, we worship cow. Why? Yes, sir. Because cow is first of all a very peaceful animal. We consider cow as mother, equivalent to mother, a goddess. Yes, sir. It gives us, it's a herbivorous animal. It gives us Yes. milk, and we get, cow's milk is considered the best nutrition wise, with very less fat and maximum nutrition. So if anything goes against the cultural values of any community where you are doing business, then the people of that community will not accept your products, your business, they will not accept you. Yes. A few years back, there was, it came to the knowledge of people कि मैकडोनल्ड्स ने
Beef oil was beef being used, used sir. Yes, sir. to fry various items. Even vegetarian burgers, vegetarian French fries, they were frying in beef oil. Now, when people came to know this, they were furious. They were very angry. Means how, first of all, how can you use a beef oil for vegetarian products? Then they are no longer vegetarian. Secondly, even non-vegetarians did not accept their food items to be prepared in beef oil because we worship cow. Beef oil means oil made from cow skin. So that was simply unacceptable. बहुत से लोगों ने मैकडॉनल्ड्स जाना बंद कर दिया. कई मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, बंद करवा दिए फोर्सिबली. McDonald's had to come out and apologize publicly. They did not accept that they were using it in vegetarian products, although they were. But they accepted they were using it in non-vegetarian products, but they apologized and they assured they will not be using it any longer. So this is how cultural values can affect business. We can take another example. When there was 26/9 attack in USA, you remember? Yes, sir. Heard about it? Yes. Yes, sir. Who was the mastermind? Sir, Osama bin Laden. Yes, absolutely, Osama bin Laden. So these, as soon as the American agencies found out that he was the mastermind and his pictures were flashed all over news channels, now Americans became very scared of anyone wearing a turban. उन्हें लगता था जिसने भी पगड़ी पहनी है वो शायद लादेन से रिलेटेड है. तो अमेरिका में बहुत से सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लग गई. कीर्ति, you have raised your hand. Anyone raising hand, please note down your doubts in rough. I'll be answering them at the end of session. Please don't raise hands, just keep noting down your doubts in rough. At the end of the session you can ask them. Okay, so सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उनके लिए प्रॉब्लम हो गई. कई अमेरिकन कंपनीज ने इस तरह के ऑर्डर्स निकाल दिए दैट नो एम्प्लॉय will be allowed to enter the office wearing a turban. Now this was a big problem for Sikh community people. They filed a case in the court. And interestingly, American courts ruled in favor of Sikhs. They said you cannot force anyone to not to follow their cultural practices. You cannot ask them to remove their turbans when turbans are a matter of prestige for them. It's a matter of respect for them, right? So ultimately all American companies had to allow Sikh community people to wear turbans. This is how cultural values can affect business. So wherever you are doing your business, you have to keep in mind the cultural values of that particular area, of that particular community. Still some, just a sec, someone still asking for entry. Not now. Just a sec. Okay. So, is this point clear? Yes, Yes. sir. Next is education system. How does education system affect a business? Can anyone tell me? Sir, when the news station begins, the the amount of books and stationery item increase. The amount of stationery item increases. Right. Okay, okay, good.
What else? Yes, sir. And proper education increases the value of human resource, which ultimately has to work for the country itself. Right. Okay, what are your views about Indian education system? How is it? Good, bad, average? What do you say? Sir, it is average. Average. Why do you think so? So Sir, because Ansh, bolo. because the everyone can't afford the Indian education system. But And government schools are free. And sir, even but in in private government school, schools, even in private schools, there is free education facility for EWS students. sir, yes, but taking example of government schools, there are not proper facilities provided to the students. Sir, can I give you example, please? Yes, yes. Sir, my housemate's child goes to a government school nearby my house. Hmm. There are not proper facilities provided to them. They do not get midday meal regularly, sir, Hmm. and the school which provide them with copy and stationery items, they are not up to the mark, sir. Okay, but what I heard is in recent years the scenario has changed. There is a lot of improvement in Delhi government schools, and in fact, many of them are now having facilities and infrastructure better than private schools. Many private schools. yes, sir, they have the facilities, but still in some areas there is not much awareness about the importance of education. Okay, Jatin, you also raised your hand. I just said no one should raise their hand. Just keep noting down your doubts in rough. I'll discuss them at the end of the session. Or you can text your doubts to the people whose mic is on and they can ask on your behalf. Yeah, please, Tanya, you were saying something. So I was just saying that still in some areas people are not aware about the importance of education, and the students are not taught that education is very necessary for their as well as the country's future. Okay, okay. So let's discuss something about Indian education system. In Vedic, Okay. let's go back in Vedic period. In Vedic period, we used to have Gurukul system. गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था 5 इयर्स की एज के बाद बच्चे गुरुकुल में जाते थे, ठीक है, और उसके बाद अगेन ये क्या वेटिंग रूम डिसेबल क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड. या सो 5 इयर्स की एज के बाद बच्चे गुरुकुल में जाते थे, और गुरुकुल में जाने के बाद वो वहीं पे रहते थे, रेजिडेंशियल स्कूलिंग थी, ठीक है, आश्रम में ही रहते थे, नेचुरल सराउंडिंग्स में उनकी पढ़ाई होती थी, बहुत छोटे छोटे से ग्रुप्स होते थे जिनमें वो पढ़ते थे, अराउंड 10-20 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, ठीक है, और वहां पर जनरल एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स वाज गिवन फॉर फर्स्ट अराउंड 2-3 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स. उसके बाद ज्यादा फोकस किस पे होता था, आइडेंटिफाई करते थे, जो गुरु होते थे वो आइडेंटिफाई करते थे कि बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज में है, एबिलिटी किस चीज में है, उसमें उसको ज्यादा ट्रेन किया जाता था, और बाकी सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज लिमिटेड दी जाती थी बच्चे को. तो यानी स्पेशलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाती थी. बच्चे वही सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट और एबिलिटी होती थी. सो इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम. Discipline was very high, and that is why in our ancient past we had such great scholars like Aryabhat, like Ramanujam, right, like Rabindranath Tagore. तो बहुत और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप नेट पे सर्च करोगे, बहुत ग्रेट स्कॉलर्स हुए हैं इंडिया में जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इतना कुछ सिखाया है. इंडिया में it is said most of the subjects originated in India during that time, during the Vedic time. Plastic surgery उस time India में होती थी. Sushruta was the person who had started plastic surgery, who wrote Sushruta Samhita, a book which is considered the original text on medical science.
वहां से कॉपी कर करके ब्रिटिशर्स ले गए, फॉरेनर्स ले गए वहां का टेक्स्ट सुश्रुत संहिता का, और उन्होंने अपने नाम से वो सब चीजें पेटेंट करवा ली वहां पर जाकर अपनी कंट्री में। सिमिलरली एयरक्राफ्ट नॉलेज, डिजाइनिंग डेवलपिंग एन एयरक्राफ्ट, दिस नॉलेज वाज देयर इन इंडिया इन वैदिक पीरियड। उसके एविडेंसेस अवेलेबल हैं, नेट पे सर्च करोगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का। और आपने वो सुना होगा हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, युग सहस्र योजन पर जानू, सुना है? Yes, sir. तो इस लाइन में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है कुछ नंबर्स हैं इसमें, ठीक है, उन नंबर्स को एडअप किया, ये मेंशन आ रहा है, लेट मी रिकॉल द लाइन अगेन, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। जब हनुमान जी सूर्य को निकल जाते हैं उसका मेंशन है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें युग, योजन, सहस्त्र ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए दैट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एज साइंटिस्ट्स एक्सेप्ट टुडे। So just imagine what kind of knowledge we had during the Vedic period, during the ancient era. तो बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था और बहुत अच्छे अच्छे बहुत नॉलेजेबल स्कॉलर्स डेवलप किए इस एजुकेशन सिस्टम में। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए। जब ब्रिटिशर्स आ गए, आपने लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना? Yes, sir. Sir, थोड़ा थोड़ा। What do you know about it, about him? Sir, he Tanya? was an essayist. Yes, again please. He wrote on historical subjects. Yes, he was sent by the Britishers, British government in India to study the Indian society and recommend how Britishers could rule India effectively. तो वो आए, उन्होंने पूरा इंडिया में ट्रैवल किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो रिपोर्ट भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप लॉर्ड मैकॉलेज रिपोर्ट करके सर्च करना, बाद में मिलेगी आपको। उसमें उन्होंने कहा it is such a wonderful country, these people are far more superior than us Britishers, we can never rule them because we are inferior to them. तो कैसे सुपीरियर हैं इंडियंस? उन्होंने लिखा इंडियंस हैव अ वेरी हाई वैल्यू सिस्टम, इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं, लालच नहीं है ज्यादातर लोगों में, they are satisfied with whatever they have and there is minimum theft, minimum begging. He said, I did not see any such things in this country because everyone is having sufficient. Yes, differences are there, someone is having more, someone is having less, but everyone is having sufficient and they are satisfied in whatever they have. And plus because we had a value of simple living, high thinking. लेकिन उन्होंने कहा अगर यही चलता रहा, और इसका रीजन क्या है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस देता है वैल्यूज पर, अच्छे बिहेवियर पे, और इसलिए ये लोग हमसे सुपीरियर हैं, हम इन्हें रूल नहीं कर सकते। आगे उन्होंने लिखा अगर हमने इन्हें रूल करना है तो हमें इनके वैल्यू सिस्टम को तोड़ना होगा। We'll have to break their value system. We'll have to break their education system. And to break that education system, they stopped all the gurukuls. गुरुकुल्स को उन्होंने बैन कर दिया। ब्रिटिश स्कूल्स उन्होंने खोलने शुरू कर दिए, द काइंड ऑफ स्कूल्स वी हैव नाउ, इस तरह के स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए। और इन स्कूल्स में मेनली फोकस किस पे था? उन्होंने कहा वैल्यू एजुकेशन तो देनी नहीं है इंडियंस को, क्योंकि इनकी वैल्यू सिस्टम को तो हमने तोड़ना है। जब इनकी वैल्यू सेटिस्फैक्शन की हटेगी, सिंपल लिविंग की हटेगी, तभी तो हम इन्हें अपने गुड्स बेचेंगे। क्योंकि बेसिकली वो क्या आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहां पर जो इंडस्ट्रीज की मास प्रोडक्शन हो रही थी,
सस्ता रॉ मटेरियल खरीदने और महंगा फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने आए थे वो यहाँ पर मेनली। तो उन्हें सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर चाहिए थे, अपने ऑफिसेज में फाइल्स संभालने के लिए, फाइलिंग वर्क करने के लिए क्लर्क्स चाहिए थे। तो उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंपोज किया इंडिया पे जिसमें यही सब क्रिएट हो, बस जहां पे स्टूडेंट्स में क्वेश्चन पूछने की कैपेबिलिटी ना रहे, जहां पे आदत ही ना हो स्टूडेंट्स को, जहां कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे तो टीचर कहे चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। जहां कोई स्टूडेंट कुछ डाउट रेज करे, कुछ डिफरेंट ओपिनियन रखे, उसे चुप करा दिया जाए, नॉट इन द सिलेबस, जस्ट लिसन क्वाइटली। तो इस तरह का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया ताकि इंडियंस को कंडीशन कर दिया जाए कि जब वो फैक्ट्रीज में काम करें, जब वो ऑफिसेज में काम करें, विच वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो सिर्फ यस सर कहना ही उनको आदत हो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की आदत हो। उनके अपना कोई माइंडसेट नहीं हो, रैशनल थिंकिंग ना हो, साइंटिफिक थिंकिंग ना हो। इस तरह का सिस्टम उन्होंने इंडिया पे लाद दिया और उसकी वजह से उन्होंने इंडिया वैल्यू सिस्टम को काफी हद तक तोड़ दिया और वो इंडिया पर इतने टाइम तक रूल कर पाए। एनी हाउ ब्रिटिशर्स गए तो उसके बाद हमें वापस अपने जो इतना गोल्डन हमारा एजुकेशन सिस्टम था उस पर वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन हम पूरी तरह से उस पर नहीं गए। अनफॉर्चुनेटली आज भी मेनली वही एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। चेंजेस क्या हुए? गांधी जी ने एम्फेसाइज किया कि कुछ वोकेशनल बच्चों को आना चाहिए, नहीं तो वो डिग्रीज लेके बैठे रहेंगे, जॉब नहीं मिलेगी उन्हें, सिर्फ नॉलेज गेन करते रहेंगे। तो इसलिए वर्क एक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन वो किस तरह से स्कूल्स में अप्लाई हो रहा है, बहुत से स्कूल में वी ऑल नो, क्या एक्चुअली वर्क एक्स करवाया जाता है, कुछ वोकेशन सिखाया जाता है वर्क एक्स में स्कूल्स में? बहुत से स्कूल्स में नहीं, कुछ स्कूल्स में यस, लेकिन बहुत से स्कूल्स में नो। डिस्पाइट दैट हमारा जो, हाँ, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने साइंटिफिक टीचिंग पे जरूर एम्फेसाइज किया, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था इंडिया में। When India lost the battle to China in 1962, तो ये रियलाइज किया गया कि इंडिया क्यों हार गया। तो पता चला जी इंडियंस में साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पीछे थे। तो डिसाइड हुआ कि साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड कैसे बने। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन कमीशन बनाया, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर चेंज हुआ कि पहले 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे साइंस पढ़ते थे, 8th स्टैंडर्ड के बाद स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स हो जाती थी, जो अभी 11th में होती है ना, वो पहले 9th में हो जाती थी। तो उन्होंने कहा 10th तक सबको साइंस पढ़नी जरूरी है ताकि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो। तो वो 10+2 का सिस्टम आया, पहले 8+3 होता था, फिर 10+2 हो गया ये। तो और स्टैंडर्ड्स थोड़े से एजुकेशन के रेस किए गए, नॉलेज लेवल के स्टैंडर्ड्स रेस किए गए, वैल्यू एजुकेशन कुछ हद तक वापस आया एजुकेशन सिस्टम में, ऑल्दो जितना होना चाहिए, जितना वैदिक पीरियड में था उतना आज भी नहीं है, बहुत कम है। ये सब चेंजेस होने के बाद आज का एजुकेशन सिस्टम बना जो आज की डेट में चल रहा है। स्टिल आवर एजुकेशन सिस्टम, हाँ, ये उतना अच्छा नहीं है जितना पहले होता था वैदिक, बट फिर भी काफी ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स की वर्ल्ड ओवर बहुत हाई वैल्यू है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्रीज में, you will find many Indians who are doctors, engineers, software developers over there. In fact, आजकल एक बड़ा जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे, Britain these days. Have you heard it? Read it? Sir, could you please repeat? आजकल सोशल मीडिया में एक जोक चल रहा है कि आजकल ब्रिटेन को रूल कौन कर रहा है। पढ़ा आपने इसके बारे में? Yes. No, sir. No, sir. British prince is in isolation because of coronavirus. Their prime minister is in isolation. Yes. वहां पे होम मिनिस्टर हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ,
हु इज एन इंडियन. वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस प्रीति, अगेन एन इंडियन. सो दीज टू पीपल आर मेनली रनिंग देयर गवर्नमेंट. तो वो जोक चल रहा है कि 200 साल के बाद इंडिया इज नाउ रूलिंग ब्रिटेन. So, jokes apart, all over the world बहुत हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेशंस हैं वहां पे बहुत से मिलेंगे आपको. क्यों? क्योंकि आज भी हमारा ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ये इतना अच्छे से ट्रेन कर देता है. और इसीलिए आप देखोगे इंडिया में इतनी सारी, गुड़गांव नोएडा में इतनी सारी केपीओ बीपीओ इंडस्ट्रीज हैं, कॉल सेंटर्स हैं वर्ल्ड ओवर कंपनीज के. क्यों? बिकॉज दे गेट highly qualified English speaking workforce whom they have to pay very less compared to their country. अपनी कंट्री में उन्हें सेम स्किल्स वाले लोग मिलते हैं लेट अस से $30,000 में. यहां पर वो मिल जाते हैं 30,000 रुपीज पर मंथ में. तो डॉलर का रेट अगर 70 रुपीज के आसपास है तो 70 टाइम्स की उनकी सेविंग हो जाती है. नाउ फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन, can you relate education system with business now? Yes, sir. Yes. बताओ क्या रिलेशन है? Sir, when a country provides good education to the to its citizens, it benefits the business. For example, they get more skilled people with the help of good education. Yes, the companies get highly qualified, well-trained staff if the education system is good. Second, the consumers are also knowledgeable, so companies need to be careful. They should not cheat the consumers, right? So effective and efficient workforce is provided by good education system. एजुकेशन सिस्टम के बारे में गांधी जी का क्या कहना था? गांधी, वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वोकेशनलाइजेशन होनी चाहिए एजुकेशन की, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न सम वर्क विच दे कैन यूज टू अर्न. वी शुड क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स. ये उनका एम्फेसिस था. अगेन अब प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर आप देखो तो ध्यान उस पे फोकस कर रही है, स्किल इंडिया पे, स्किल इंडिया मूवमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम कंपलसरी कर दिया है 9th क्लास ऑनवर्ड्स. टिल क्लास 8 दे आर हैविंग अ हैप्पीनेस करिकुलम जिसमें वो फोकस करते हैं कि खुद भी खुश कैसे रहना है और दूसरों को भी कैसे खुश रखना है. और 9th ऑनवर्ड्स दे हैव एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम इन 0 पीरियड एवरी डे, जिसमें फोकस किया जाता है कि आप जॉब की वेट मत करो कि आपको जॉब मिलेगी तब आप अर्न करना शुरू करोगे. आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करो. तो ये फोकस गांधी जी का था. रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा. Yes. What do you know about his education? Sir, he was a great Bengali author, and sir, he was very good in literature. Very good in literature. He was a great poet. हमारा नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम उन्हीं ने The लिखा national हुआ है. anthem. He was a great music composer. उसका म्यूजिक भी उन्होंने कंपोज किया हुआ है, right? And he was a very good author, poet. So he was a multi-talented person and also a Nobel Prize winner. Yes, sir. उनकी स्कूलिंग के बारे में मालूम है आपको कुछ? No, sir. No, sir. He was a school dropout. Oh. वो किसी फॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़े. क्या हुआ, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक स्कूल में डाला, तो कुछ दिन बाद वो वहां से परेशान होकर वापस आ गए कि नहीं मुझे नहीं जाना. फिर दूसरे स्कूल में डाला, वहां से परेशान हो गए कि मुझे नहीं जाना. तो ही डिड नॉट अटेंड एनी. उनके पेरेंट्स ने कई स्कूल्स चेंज किए, लेकिन कहीं पे भी उनका मन नहीं लगता था.
तो जब पेरेंट्स ने पूछा कि क्यों मन नहीं लगता है, क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें स्कूल में, तो उन्होंने कहा जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो मुझे बैठा दिया जाता है चुप करके कि नहीं चुप करो, चुपचाप सुनो, तुमने बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, कुछ पूछना नहीं है तुमने। तो ही सेड बड़ा बुरा लगता है मुझे। फिर उन्होंने कहा कि जब मेरा मन कर रहा होता है बाहर जाके मैं खेलूं, उस टाइम मुझे कहा जाता है तुम ये क्लास से बाहर नहीं निकलोगे। कहते हैं जब मेरा मन कर रहा होता है कि मैं म्यूजिक की क्लास अटेंड करूं, उस टाइम मुझे कहते हैं मैथ पढ़ो। तो उन्होंने कहा क्यों, जब मेरा मन उस टाइम कुछ और पढ़ने का है तो मैं दूसरी चीज क्यों पढ़ूं। तो अल्टीमेटली हिज पेरेंट्स गेव अप, उन्होंने कहा ठीक है भैया तुम घर पे ही पढ़ो। फॉर्चुनेटली वेल ऑफ फैमिली थी, तो घर पे ही उनका ट्यूशंस वगैरह अरेंज कर दी और उन्होंने सारी स्टडीज अपने घर पे की। जैसा जिस टाइम जो वो पढ़ना चाहते थे उन्होंने वो पढ़ा अपनी चॉइस से, अपने टाइमिंग पे। एंड व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही बिकेम, वी ऑल नो। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं दुनिया में जो फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू भी बहुत सक्सेसफुल हुए, और ऐसे भी कई एग्जांपल हैं जो जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई। एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। हाँ, जिनको उनके स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह के कि ये तो डम बच्चा है, लेकिन उनकी मदर ने वो नोट उन्हें पढ़ के नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि स्कूल वाले कह रहे हैं आपका बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हम नहीं पढ़ा सकते इतने इंटेलिजेंट बच्चे को, आप प्लीज खुद ही पढ़ो। और क्या वो जीनियस बने बाद में, वो घर पे ही पढ़ पढ़ के। तो ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा बड़े होकर कि हमारा ये जो ब्रिटिशर्स वाला एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज कल्चर ऑफ साइलेंस, कि आप बस सुनते रहो, कुछ आप बोलोगे नहीं बीच में, कोई आप डाउट नहीं पूछोगे, जो बता दिया बस बताया जा रहा है, बस लिखते जाओ, याद करो, एग्जाम में लिखाओ और आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्लास में। तो उन्होंने कहा दिस इज कल्चर ऑफ साइलेंस, दिस इज रॉन्ग। आप बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी ही किल कर देते हो इस सिस्टम के थ्रू। अगर वो पूछेगा नहीं, अगर वो अपनी ओपिनियन रेज नहीं करेगा, अगर वो अपनी रीजनिंग यूज नहीं करेगा, तो कैसे सीखेगा कुछ भी। एंड वेरी राइट। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना स्कूल बनाया, शांति निकेतन, सुना हो अगर आपने। Yes, sir. तो Yes. शांति निकेतन उन्होंने बनाया, कहाँ बनाया, जंगल के बीच में एक आश्रम के फॉर्म में, गुरुकुल टाइप का। वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दी, आर्ट भी, आर्ट एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंसेस, सोशल साइंसेस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और फ्लेक्सिबिलिटी दी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, आपको जिस जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसमें एनरोल कर लो, उसकी क्लासेस अटेंड कर लो आप। और पढ़ाई होती थी क्लासरूम के अंदर नहीं, गुरुकुल सिस्टम की तरह पेड़ के नीचे बैठ के, अ टीचर डिस्कसिंग, हैविंग डिस्कशन, नॉट लेक्चर, डिस्कशन, जहां पे स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, वो भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और बड़ा लिमिटेड ग्रुप होता था, अराउंड 10-20 स्टूडेंट्स का पर टीचर। तो इस तरह का सिस्टम उन्होंने, और उसमें वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस दिया उन्होंने। वही शांति निकेतन आज की डेट में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वेरी वेरी फेमस। अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा आपने। यस सर। कौन है? इकोनॉमिस्ट है सर। इकोनॉमिस्ट हैं, और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है उन्हें। यस। इंडियन है वो, वहीं के पढ़े हुए हैं, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। सो वंस अगेन आपको मैंने बताया, जब हमारा वैदिक पीरियड में गुरुकुल सिस्टम होता था, कितने ग्रेट स्कॉलर्स निकलते थे, बनते थे। और अगेन उसको रेप्लिकेट किया गया बाद में शांति निकेतन की फॉर्म में, तो अगेन वहां से कई स्कॉलर निकले हुए हैं। वन एग्जांपल इज अमर्त्य सेन। सो दिस इज अबाउट एजुकेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। Fine. Next point is social trends. What do we mean by a trend? Sir, it is a ongoing fashion in the society Yes. which helps in the increase of business. For example, in today's time, there is a high demand of masks and sanitizers going on. Yes, very good. Trend is something which is
गोइंग ऑन सिंस रीसेंट पास्ट, पिछले कुछ टाइम से जो चल रहा है, दैट इज ट्रेंड। ठीक है, जैसे वो फॉग वालों ने ऐड बनाई है ना, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो मतलब फॉग का ट्रेंड है, वो कहना चाह रहे हैं। तो ट्रेंड इज जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ सालों से लोग डाइट कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, फिटनेस कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं। तो ये एक ट्रेंड आया है, हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड आया पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह से बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर कुछ मतलब जिम्स ज्यादा खुलने लग गए, एंड मतलब हेल्दी रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए, नॉट लाइक मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा वगैरह, वेरी पिज्जा गुड, वगैरह। वेरी गुड। जिम्स ज्यादा खुलने लग गए, एक्सरसाइज इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ गई, पार्क्स में आपने देखा होगा ओपन एयर जिम बन गए। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो लोग पार्क्स में वॉकिंग जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए ज्यादा दिखाई देने लगे। लोग डाइट कॉन्शियस हो गए, मीठा कम कर दिया लोगों ने खाना, ऑयली फूड्स कम कर दिए, जंक फूड थोड़ा कम कर दिया लोगों ने खाना। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल ट्रेंड्स ऑन बिजनेस। उसकी जगह क्या हुआ, रिफाइंड ऑयल की डिमांड कम हो गई क्योंकि वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है। काउ मिल्क घी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो हेल्थ के लिए कंपैरेटिवली अच्छा है। राइट, सो रेस्टोरेंट्स में भी लोग हेल्दी फूड ज्यादा प्रेफर करने लग गए और जंक फूड कम। दिस इज हाउ सोशल ट्रेंड्स अफेक्ट बिजनेस। एनी डाउट? नो No, सर। sir. इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल साइंस के फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हुई, वैक्सीनेशंस डेवलप हुई, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हुआ, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ गई। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी तो बिजनेस पर कुछ इंपैक्ट होगा? अगर होगा तो क्या होगा? So there will be more demand for products for elderly people, for the aged ones, हाँ, वेरी गुड। लाइक like walking sticks. वॉकिंग स्टिक्स, व्हील चेयर्स, मेडिसिन, हेल्थ Yes. सप्लीमेंट्स। राइट, तो सर recreation homes, recreation rooms where they can sit and they can play cards, they can play carom board, they can watch TV together. तो इस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट इज वर्किंग women. What do we mean by working women? Women which are who are working in some MNCs, enterprises, who are basically performing an economic activity. Very good, yes. So homemakers or housewives, are they not working women? So they are working women, but they are performing a non-economic activity. Okay. Non-economic activity, we call it, okay, why do we call it non-economic activity in case of homemakers? सर Because it बिकॉज does not help to generate any kind of income. Okay. Main reason is because the activities, see, a homemaker is working very hard. A homemaker is producing very valuable, very important services for the family. वही सर्विसेज अगर आप होम मेकर ना करें, उसके लिए मेड रखोगे, उसको पैसे दोगे ना, तो तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग। द सेम थिंग व्हेन इट इज डन बाय होम मेकर, वी से इट इज नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक वो इसलिए है क्योंकि when a homemaker does it for her own family, his own family, then that is out of love and affection, a lot of love and affection, care. और लव अफेक्शन केयर को हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। नहीं कर। ठीक है, इसलिए मेनली वो नॉन इकोनॉमिक है। दैट इज सेकेंडरी रीजन कि कोई इनकम इन्वॉल्व नहीं है। अदरवाइज इनकम तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वेकेंट है तो भी हम उसका
रेंट एस्टिमेट करते हैं कि अगर ये लेट आउट होता तो कितना रेंट मिलता। हाँ जी सर, इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जी, थोड़ा सा डिफरेंट है इम्प्लिसिट कॉस्ट से, बट हाँ थोड़ा रिलेटेड भी है। एनीवेज, सो डू यू थिंक होम मेकर्स, इफ अ वुमन इज अ होम मेकर, then her contribution to the family, to the economy, to the country is less important than a woman who is working, going out to work? Sir, it is important, but some less than the working, because uh, if they do not work, the men and the children will not be that good. Okay. Your views, Chinmay? Okay, let me put it this way. Should women be working or not? Means, should they be going out to work as an employee, as a business person, or not? So it should be as per their wish. If she wants to, she should. If she doesn't, as per her choice. Excellent. Anyone else? Chinmay, your views? Sir, he has muted his mic. He has muted his mic. Very good. Now, this thing becomes very difficult for me. Some students tell me, sir, please keep us unmuted. We want to discuss. Some students, when I unmute them, they mute themselves back. So it's difficult for me to decide whom to unmute, to not. Anyways, I totally agree with what Tanya said. It is up to that person. It should be every man or every woman's choice whether they want to work or not work. Means go out and work. We are talking about working. तो homemakers की भी working है और बहुत hard work है इनफैक्ट वो, right? लेकिन किसी भी चीज के कुछ pros and cons होते हैं, तो वो हमें माइंड में रखने चाहिए. If the man and his wife both are working, what are the benefits? So Sir, obviously there is more of income generated in the family. They'll have a better living. Yes, more family income, better standard of living, right, for the family. Any other benefit? Ansh? sir, there will be more job security. If one person wishes to quit his job, there will be another person benefiting Very the good. family. Right, that is another benefit. Now, what can be the drawbacks of this if both are working? There will be not the proper management of the children, and The Yes. family. Yes. The family suffers, the children suffer, because the nature has given the responsibility of child bearing and rearing to a woman, right? If she is working, it is seen that many companies, they do not give sufficient leave to women uh, for their maternity purposes, for feeding the child, and it is said that the child needs mother's feed for at least 6 months exclusive and up to 2 years of age to develop good immunity. So all that is compromised. Plus, when both parents are working, no one is there to look after the children at home. Children are left either with the grandparents. Grandparents do not have that level of energy which is required to play with the children. So what they generally do is they switch on TV, cartoon channel, देखो वहां पे वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसी को नहीं पता. so sometimes they are sent to daycares and boardings, which and that could be harmful for children. Yes, some parents leave their children with the maids, with the domestic helpers, or in crutches. And time and again, there have been news reports that some of the helpers, obviously, they will not have that kind of love and affection for the child what the parents will have. So what they also do is either they switch on TV, let the child watch, or they give the child a mobile phone, you play with it. Or in some very disturbing news, it has been seen
these maids or domestic helpers beating up the child frequently, eating away the food which parents had left for the child themselves. In creches, in many creches, it has been reported they give sedatives to the children. Sedatives meaning वो खाने में ऐसी मेडिसिन मिलाकर दे देते हैं बच्चे को, मिल्क में मिक्स करके या खाने में, कि बच्चा ज्यादा देर सोता रहेगा और उन्हें परेशान नहीं करेगा. लेकिन ये सब चीजें बच्चे की हेल्थ के लिए बड़ी हार्मफुल हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसे में. तो जब भी कोई कपल ये डिसीजन ले, अ मैन एंड अ वुमेन, that whether both of them should work or one of them should work and the other should be a homemaker, and if so, then who should work, who should be a homemaker, all these factors should be kept in mind while taking that decision. Now anyways, if women are working, what is the effect on business? What are the effects? अच्छा, एक और ड्रॉबैक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं उस फैमिली की इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन जो बाकी कंट्री, क्योंकि कंट्री में जॉब्स तो लिमिटेड है, तो एक फैमिली के तो दोनों लोगों को जॉब मिल गई. कई ऐसी फैमिलीज होगी जिनमें एक भी पर्सन को जॉब नहीं मिल पा रही है. तो इस तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ सकती हैं ऐसे में. Yes, Okay. sir. Tell me the impact of working women on business. Sir, it will increase the supply of easy food making machines, and there will be more demand of more easy ready to make foods. Very good. Are they healthy? Sir, they are not healthy, but they are good, sir. It Yes. can feed them. जैसे जैसे वर्किंग विमेन सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हो रहा है कि एक तो हमने डिस्कस किया, फैमिली में चिल्ड्रन नेग्लेक्ट हो रहे हैं, एल्डरली जो घर पे हैं अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं. लेकिन और दूसरे जो उसके इम्पैक्ट्स हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर डिस्कस करें, तो किचन ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, रेडी टू ईट फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ रही है, हाउस होल्ड मेड्स की डिमांड बढ़ रही है, एज अंश राइटली सेड. ठीक है, उसके अलावा एक और चीज की डिमांड बहुत बढ़ रही है वर्किंग विमेन का नंबर इंक्रीज होने से. So, the maids and the house helps who will take their place when they will go for work. Yes, yes. And also cosmetics. Yes, sir. कॉस्मेटिक्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है. इन एक मिस इंडिया जो मिस वर्ल्ड बनी थी 1960s में, रीटा फारिया, उसके बाद नेक्स्ट जो इंडिया से मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनी वो बनी 1990s में, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा. हाँ, दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा. उसके बाद तो लाइन लग गई 90s onwards. Have you ever thought why? No, sir. Sir, because it started the cosmetic trends in India and beauty trends Why in in India. 90s? Why in 90s? क्या उससे पहले इंडियन गर्ल्स कम ब्यूटीफुल होती थी, 90s में एकदम से ज्यादा ब्यूटीफुल होने लग गई? नहीं. अगर आप ध्यान से सोचो, 91 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, जिसमें बहुत सी फॉरेन कॉस्मेटिक कंपनीज भी आई. और जितने भी ये ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इसके स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? Beauty यही कॉस्मेटिक, cosmetics companies. मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज. ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन why so many Indian girls started becoming Miss World, Miss Universe, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया has a huge population, कॉस्मेटिक कंपनीज के लिए बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया. तो उन्होंने कहा इंडियन गर्ल्स को मोटिवेट करो कि कॉस्मेटिक ज्यादा यूज करें. कैसे मोटिवेट करो?
इंडियन गर्ल्स को कुछ को मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का क्राउन पहना दो और फिर वो हमारे प्रोडक्ट्स की एड्स करेंगी, और जब वो हमारे प्रोडक्ट्स की ऐड करेंगी तो जितनी गर्ल्स हैं वो सोचेंगी अरे वाह मुझे भी इसके जैसा बनना है, आई शुड आल्सो यूज दिस प्रोडक्ट। तो ऑल दिस इज बेसिकली मार्केटिंग। ठीक है, तो ये इंपैक्ट आया वर्किंग वुमेन से, वर्किंग वुमेन का नंबर इंक्रीज होने से। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक इशू है, 2 मिनट में डिस्कस करते हैं बस, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, ये भी एक सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आई वांटेड टू डिस्कस इट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? Sir, for example, if a person has scored 90% marks in his class 12 and a SC and ST person has scored 60% marks, he gets the seat, but the 90% person not get the seat. That's So, the is situation. it justified or not? No, Sir, sir, because the no, person sir. who is deserving, they will automatically get it as per their percentage, their grades on their merit basis. Absolutely, I agree with your viewpoint totally. So my views, I'm just reading out quickly. Reservation should not be based on caste, community, or religion or gender. This kind of reservation increases differences in society. There are privileged and underprivileged members in all castes, in all communities. So if there is any social or legal exploitation anywhere, that should be handled by law and order system, not by reservation. अगर reservation solution होता इन problems का, तो 70 सालों के इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक तो सोसाइटी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी, सारी एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जानी चाहिए थी, बट इट इज नॉट सो। तो रिजर्वेशन यस होनी चाहिए, मेरी ओपिनियन में 10% फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पुअर हैं उनके लिए, और 10% फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रिलीजन के हो, विद सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और वो भी उन जॉब्स में जहां पर, मतलब ऑपरेटिव जॉब्स में, हाई लेवल जॉब्स में या प्रोफेशनल एरियाज में नहीं, सिर्फ ऑपरेटिव लेवल जॉब्स में। व्हाट आर योर व्यूज? Sir, it is totally correct, sir. Okay, so we stop our discussion over here today. Now I'll unmute all to ask any doubts. Yes, any doubts, anyone? Excuse me, sir. Name first. Sir, Anshika. या अंशिका बोलो। सर, आपने जो वो टर्बन वाला एग्जाम्पल दिया था कल्चरल वैल्यूज में, Yes, वो yes. कैसे रिलेटेड है किसी बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए? कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो? सर, आपने जो वो अटैक वाला दिया था कि वो बिन लादेन जो था उसके पीछे, टर्बन एंड वाला। टर्बन्स को उन्होंने, हाँ तो अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉइज, सपोज आप एक अमेरिकन कंपनी चला रहे हो और वहां पे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपने इस तरह का ऑर्डर निकाल दिया, तो उन्होंने केस किया, कंपनी को खर्चा जो हुआ होगा कोर्ट में केस को डिफेंड करने में, वो अलग। ठीक है, प्लस कंपनी को कोई लीगल अगर पेनल्टी ऐसे में इम्पोज कर दे, कुछ पनिशमेंट दे दे, वो अलग। दिस इज हाउ इट कैन अफेक्ट बिजनेस। प्लस कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है जब वो इस तरह से किसी के कल्चर को हार्म करते हैं। ओके सर। Anyone? No, sir. Okay, thank you everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.